हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछले पीरियड में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ऐसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते, 4 होते। उसमें फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिनिश किया था, दैट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग। उसमें हमने राउल्स लॉ भी स्टडी किया था। आज सेकंड और थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम है इट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। एलिवेशन का मीनिंग होता है इंक्रीज करना, तो एलिवेट मीन्स इंक्रीज। एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। सपोज कंसीडर ए लिक्विड, एक सॉल्यूशन लिया, कोई भी एक हमने लिक्विड लिया। दिस लिक्विड इट हैज सम वेपर प्रेशर। इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इट मे बी सॉल्वेंट और इट मे बी सॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है लिक्विड। तो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। अब हम इसको हीट करेंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हमको इसको बॉइल करना है। इसको इतना हीट करेंगे, इसका जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है और ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये दोनों इक्वल हो जाए। जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equal to vapor pressure of atmosphere. That temperature is called as boiling point. It is denoted by capital T. Boiling point, capital T. Here, this boiling point T. So we have two boiling point. One boiling point of pure solvent and second boiling point of solution. जैसे एक लिक्विड होता है, लिक्विड में एक सॉल्वेंट होता है या फिर एक सोल्यूशन होता है। सो पहले आएगा सिंबल T0B. T0B. T means temperature, B stands for boiling point. It is a boiling point of solvent, pure solvent. जैसे कि हम वाटर लेते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसको हम सिंबल दे रहे हैं T0B। और सेकेंड रहेगा TB। TB का मीनिंग रहेगा इट इज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट और सोल्यूशन का ही होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इट इज T0B and boiling point of solution it is TB। ये दो सिंबल हम यूज करेंगे। So what is the boiling point? Boiling point क्या होता है? It is a temperature at which vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of atmosphere. That temperature is called as boiling point. So now it is a boiling point elevation. What is this boiling point elevation? इसका हमको definition और formula भी देखने का है। So again we will consider a liquid, a pure liquid is taken, a pure solvent is taken. This is pure solvent. This pure solvent, it has some boiling point. It is delta. It is T0B. T0B is the boiling point of pure solvent. Now, in this pure solvent, a non-volatile solute is added. इसमें हम एक non-volatile solute डालेंगे। For example, pure solvent का example लीजिए आप water, और इस water में हम ऐड करेंगे salt, नमक ऐड करेंगे। So when a non-volatile solute is added to the pure solvent, it is observed that the boiling point of solution, resultant solution, water में आप salt डालेंगे तो solution बनेगा, उस solution का boiling point, the boiling point of solution that is TB, it is increases, elevate, ये बढ़ जाता है, increase हो जाता है। elevation का meaning increase होता है। So boiling point of solution it is more than the boiling point of pure solvent. Why it happened? Because of addition of non-volatile solute. So what is this? A non-volatile solute is added to the pure solvent, then the boiling point of resultant solution increases. This is called as boiling point elevation. Its symbol is delta TB. Delta TB. And its formula is boiling point of solution is more than the boiling point of solvent. Therefore, formula is delta TB is equal to TB minus T0B. So the difference between boiling point of solution and boiling point of pure solvent, that difference is called as boiling point elevation. Boiling point elevation के दो definition है। It has two definition, बाद में आपको नोट्स में मिल जाएंगे definition। अभी आप दोनों definition समझ लीजिए। First definition this: when a non-volatile solute is added to the pure solvent, then the boiling point of solution is increases. This is called as boiling point elevation. सेकेंड डेफिनेशन, ये जो माइनस है, द डिफरेंस
The difference between boiling point of solution and boiling point of pure solvent, that difference is called as boiling point elevation. So this term is boiling point elevation. Next, एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव दैट, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, प्रूव हुआ कि ये जो डेल्टा टीबी है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होती है, सॉल्यूशन के 4-5 कॉन्सेंट्रेशन होते हैं. कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के 4-5 मेथड्स होते हैं. जैसे एक मोलैरिटी होता है, एक नॉर्मलिटी होता है, एक होता है मोलैलिटी. मोलैलिटी, number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent, it is called as molality. तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये प्रूव हुआ, ये वेरीफाई हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है वो मोलैलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल m. स्मॉल m इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. दिस इज प्रोपोर्शनलिटी साइन. ये साइन हम रिमूव करेंगे. सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb multiplied by m, where K as usual K is constant, यहाँ K constant होता है. This constant Kb, it is called as, it has two name, molar elevation constant. It is called as molar elevation constant, or it is also called as ebullioscopy constant. Ebullioscopy constant, molar elevation constant or ebullioscopy constant. Kb, delta Tb is directly proportional to molarity. Removing the sign of proportionality, we get a constant Kb. It is called as ebullioscopy constant, and its unit of this ebullioscopy constant, it is Kelvin, kilogram, mole inverse. आपको ये यूनिट याद रखना, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन है. 3 साल पहले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था. द यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज, तो आंसर है केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स. सो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया. अब इस बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से हमको मोलर मास ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला डिराइव करना है, जो हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी किया था, वेपर प्रेशर लोअरिंग में. सो द पॉइंट इज, it is a calculation of molar mass of solute from boiling point elevation. ये पार्ट सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में है. चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. जैसे पिछले बार फॉर्मूला कैलकुलेट किया था आपने वेपर प्रेशर लोअरिंग में, मोलर मास ऑफ सोल्यूट m2 का. यहां भी आप m2 का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. ये 2 मार्क्स के लिए होता है. इसको स्टार्ट हम ऐसे करेंगे. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड दैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. यह भी हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. So delta TB is directly proportional to small m. Removing this sign of proportionality, delta TB is equal to Kb multiplied by m, where Kb is constant called as ebullioscopy constant. Then we will put this m. m is molality. हमको ये molality का formula put करना है. Number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. So what is molality? इसके लिए फिर हमको इसका formula डिराइव करने के लिए कंसीडर करेंगे हम. Suppose this is equation number 1. Suppose that W2 gram of solute of molar mass M2 is dissolved in W1 gram of solvent. हमको सोल्यूट ले रहे हैं और वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं. तो सोल्यूट हम ले रहे हैं W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, उसका मोलर मास है M2. इसको डिसॉल्व कर रहे हैं हम W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. सो दिस इज सॉल्वेंट. सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, तो सोल्यूट का वेट है W2 और सॉल्वेंट का वेट है W1. देन therefore number of moles of solute, it will become mass upon molar mass, W2 upon M2. Then this molality का एक फॉर्मूला होता है. Molality is equal to number of moles present in, it is a mass of solvent.
Number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. Mass of solvent in kilogram. ये पुट करेंगे number of moles, it is W2 upon M2 और mass of solvent is this one, W1 ग्राम of solvent. W1 लेकिन ये ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करेंगे हम 1000 से. So W1 upon 1000, इसको रीअरेंज करेंगे. So molality will become, molality small m will become, it is W2 multiplied by 1000 upon W1 multiplied by M2. ये M2 नीचे आ जाएगा. This is molality. अब ये मोलालिटी का जो फॉर्मूला डिराइव किया अभी बनाया हमने, इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में. Therefore delta TB is equal to, it is KB multiply by m. लेकिन m का फॉर्मूला होता है it is W2 multiply by 1000 upon W1 multiply by M2. अब इस फॉर्मूले को फाइनली हम रीअरेंज कर देंगे. So therefore this M2, this, तो M2 comes here, delta TB comes down, it becomes KB multiply by W2 multiply by 1000 upon W1 multiply by delta TB. This is the final formula to calculate molar mass of solute from boiling point elevation. ये डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए आता है. सेम टू सेम ये डेरिवेशन अभी हम देखेंगे फॉर फ्रीजिंग पॉइंट. ये बॉइलिंग पॉइंट का है. बस ये पार्ट आपके लिए न्यू है. आपको ये समझना व्हाट इज मोलैलिटी. जैसे डेफिनेशन बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. So this is derivation to calculate molar mass of solute. ये फिनिश होता है सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. अब हम करते हैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो नंबर थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज. So this depression in freezing point depression is same as that of elevation of boiling point. अभी जो हमने सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बस उसको ही कॉपी करके उसके ही पॉइंट्स हमको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पे पढ़ना है. डिफरेंस ये है कि वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे वाटर का एग्जांपल लेते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और उसी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है. सो हमको सॉलिड वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है. तो पहले देखते हैं व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट. सो देयर इज वन, अगेन विल टेक वन लिक्विड. एक लिक्विड लेंगे हम. दिस लिक्विड इट हैज सम वेपर प्रेशर. इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा. अब इस लिक्विड को हम फ्रीज करेंगे. इसका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे सो दैट इट स्टार्ट फ्रीजिंग. इसका टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे और जब ये पूरी तरह फ्रीज हो जाएगा, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, तब यहाँ पे उसका हम वेपर प्रेशर देखेंगे. वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड, उसका ही सॉलिड. जहां ये दोनों वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, that temperature is called as freezing point. The temperature at which vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of its solid, it is called as freezing point, and it is denoted by symbol is T. freezing point. इसके भी दो टर्म रहेंगे. एक रहेगा T0F, that is freezing point of solvent, pure solvent. T0F प्योर सॉल्वेंट, जैसे वाटर. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये है 0 डिग्री सेल्सियस. और दूसरा रहेगा TF, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. वाटर में अगर आप नमक डालते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट दो होते हैं, एक सॉल्वेंट का और एक सॉल्यूशन का. सोल्यूट हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ही देखते हैं. तो T0F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TF freezing point of solution. So what is freezing point? Is a temperature at which vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of its solid. Now as earlier जैसे हमने boiling point में देखा था, experimentally it is verified that freezing point depression it is directly proportional to molality. ये भी एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया है, वेरीफाई किया गया कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी पर. इसको सिंबल पुट करेंगे. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का सिंबल डेल्टा TF, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल m. फिर से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे. डेल्टा TF इज इक्वल टू, नाउ इट इज KF, KF मल्टीप्लाई बाय m.
where Kf is constant, Kf is called as molar depression constant. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और सेकंड टर्म में जैसे वहां हमने कहा था इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यहां रहेगा इट इज अ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। Kf इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका भी यूनिट वही रहेगा केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स, सेम यूनिट एज दैट ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज Kb। जो Kb का था वो Kf का यूनिट रहेगा केल्विन, किलोग्राम, मोल। में देखते हैं हम व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे दो फ्रीजिंग पॉइंट है आपके पास, एक है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सपोज करो कि ये प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मींस वाटर मींस आइस, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा T0F। अब इसमें आप ऐड करेंगे अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, इसमें आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, इसमें आप नमक डालेंगे। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा एक बर्फ होता है, उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री, जब उसमें हम नमक डालते हैं तो उस बर्फ का टेम्परेचर कम हो जाता है, माइनस में रहता है, -2, -3, -4, मींस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन इट डिक्रीजेस, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिक्रीज, दैट इज डिप्रेशन। सो व्हेन a non-volatile solute is added to the pure solvent, then the freezing point, not boiling point, freezing point, its freezing point decreases, इसका freezing point कम हो जाता है, boiling point तो बढ़ जाता है उधर, freezing point कम हो जाता है, that decrease in freezing point is called as freezing point depression, means freezing point of solution, that is TF, it become less than freezing point of solvent. Solvent means बर्फ, उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री, उसमें आप अगर नमक डालते हैं उसका टेम्परेचर और कम। So when a non-volatile solute like salt, it is added to a pure solvent, that is ice, then the freezing point of solution TF it decreases. This is called as freezing point depression. Formula आएगा it is a delta TF is equal to solvent का freezing point ज्यादा होता है, so it is T0F minus solution का freezing point कम होता है, it is TF, C0F minus TF. So the difference, अब इसकी दूसरी definition, the difference between freezing point of solvent and freezing point of solution, that difference is called as freezing point depression. So introduction हो गया freezing point depression definition। Next, जैसे पिछली बार हमने boiling point किया था, यहाँ पे भी हमको molar mass का formula derive करना है। So molar mass of solute, that is M2, we have to derive its formula from freezing point depression, same as that of boiling point। जो आपने boiling point elevation पढ़ा है वही freezing point depression में पढ़ना है। मींस स्टार्ट करेंगे हम experimentally, it is verified that freezing point depression is directly proportional to molality of solution। freezing point depression is directly proportional to molality of solution। सिंबल पुट करेंगे, डेल्टा TF is directly proportional to small m, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करेंगे, डेल्टा TF is equal to KF multiply by small m, where KF is constant called as cryoscopic constant। फिर ये जो मोलैलिटी है हमको इसका फॉर्मूला पुट करना है, इसी इक्वेशन नंबर 1। फिर से एक बार और अच्छी तरह देख लीजिए मोलैलिटी क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं आप तो बनती है मोलैलिटी। सपोज करो कि W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ मोलर मास, उसका मोलर मास M2, इट इज डिसॉल्व्ड इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन मोलैलिटी डी, इसकी मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी M इज इक्वल टू ऊपर रहेगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स रहेगा W2 अपॉन M2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट है W1, देखिए इसको किलोग्राम में करना है, डिवाइडेड बाय 1000। सो ये हो जाएगा मोलैलिटी M इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय M2, दिस इज मोलैलिटी। ये मोलैलिटी हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो देयरफॉर डेल्टा TF, that is boiling point elevation, it is equal to KF multiplied by M, putting the value of M, it becomes W2 multiplied by 1000
अपॉन W1 मल्टीप्लाई बाय M2। फाइनली ये M2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, देयरफॉर M2 इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 upon W1 multiplied by this delta TF comes down. Delta TF. This is a formula to calculate molar mass of solute from freezing point depression. Same as हमने किया था boiling point elevation में, दोनों सेम ही है। इसलिए एक बार और अच्छी तरह देखिए कि freezing point depression is directly proportional to molality. सिंबल पुट करेंगे, delta TF is directly proportional to small m। फिर ये proportionality की साइन रिमूव करेंगे, is equal to KF multiplied by M, where K is constant called as cryoscopic constant। फिर ये जो M है मोलैलिटी, इसका फॉर्मूला पुट करना है। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ मोलर मास M2 इट डिसॉल्व्ड इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देयरफॉर मोलैलिटी विल बिकम, ऊपर रहेगा नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास और नीचे रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट। रीअरेंज करेंगे, M का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इसको फिर रीअरेंज करेंगे और M2 कैलकुलेट। This is all about, that is third consecutive property, freezing point depression. Next period में हम fourth last consecutive property देखेंगे. Okay, thank you.